Namaskar. I'm Harpreet Kaur and I welcome you all to a very special live and interactive session of ours. You're watching us on PME Vidya channels 6 to 12 and also on our PME Vidya ISL channel number 31 along with our YouTube handle NCERT Official. Yes, this is a very special live and interactive session because today we are celebrating World Environment Day, and that is why the topic that we have taken up for this session is climate action for the present generation. We all know, and on such occasions, Mahatma Gandhi's words echoes in our, minds, and those are the famous words: "There is enough in nature for man's need, but not for man's greed." To remind people about the importance of nature, about the importance of climate, we celebrate World Environment Day every year on June 5. And this day is actually led by a very important organization, of course by United Nations, and it's being celebrated every year under a theme. And it was first started in the year 1973. इस बार भी एक स्पेसिफिक थीम है. What that theme is all about, why we need to know about climate change and nature and everything related to the environment. Why for us humans it is important? Because इतनी सारी डेवलपमेंट हो रही है और कहीं ना कहीं हम जब बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, हमारी फ्यूचर जनरेशन्स की, प्रेजेंट जनरेशन्स की, तो हम क्लाइमेट को, नेचर को फोर फ्रंट पर क्यों रखते हैं? What is the, I would say, the best way to celebrate World Environment Day? ये सारे questions मेरे mind में हैं. I'm sure you have a lot of questions too. So please feel free to get in touch with us. Our phone number is 8800440559. We also have a dedicated email ID for you, dth.class12@cit.nic.in, and on our YouTube handle NCERT Official. You can send us your questions, suggestions, and of course your feedback. To make our sessions more inclusive, engaging, and interactive, we have with us our ISL interpreter, Ms. Shikha. Ms. Shikha, we welcome you to the session. And now let me introduce you all to my guests for the session who will be throwing light on the topic और मैम के साथ एक elaborated discussion करेंगे. So please join me in welcoming Dr. Anita Bhatnagar Jain. Ma'am is former IAS and she is also an environmentalist and children's author. Ma'am, namaskar and very warm welcome to you. Namaskar Harpreet, thank you so much. Ma'am, such a beautiful topic which of course you suggested, and this leads to me towards my first question. जब हम बात करते हैं environment की, we're talking about sustainable development, future generations, we have to conserve the environment, and your topic says climate action for the present generation. So I want to ask you why you have chosen this topic, to be precise. Generally what happens whenever one speaks about climate action or environment, most people say yes, of course, for the future generation. But now climate is hitting back at us and we are facing the reality. So it is not only the future generation which is going to be affected by it, but हम में से जितने लोग वर्तमान में पृथ्वी पर हैं, हम पर भी अब इस पर्यावरण और जलवायु बदलाव का व्यापक विकट प्रभाव दिख रहा है. इसलिए जो आज का विषय है क्लाइमेट एक्शन फॉर द प्रेजेंट जनरेशन, यानी इस समय पृथ्वी पर जितने भी लोग हैं, छोटे से लेकर के बड़ी उम्र तक की, और बाकी जो जीव जंतु हैं पृथ्वी पर भी. राइट मैम, हम सब जानते हैं दैट द अर्थ इज स्पीकिंग टू अस इन न्यूमरस वेज. टेम्परेचर्स बढ़ रहे हैं, वाइल्ड फायर्स आ रही हैं, स्टॉर्म्स आ रहे हैं, ग्लेशियर्स जो हैं वो मेल्ट हो रहे हैं, डिसअपियर हो रहे हैं, और हर साल इस थीम को जब हम सेलिब्रेट करते हैं वी हैव अ पर्टिकुलर थीम जो कि उस साल के सेलिब्रेशन का मेन फोकल एरिया रहता है. आई वांट टू आस्क यू व्हाट इज़ द थीम फॉर दिस पर्टिकुलर सेलिब्रेशन फॉर दिस ईयर दैट इज़ 2026, और कैसे इसको अराउंड द ग्लोब सेलिब्रेट किया जा रहा है? Can we have the next slide, please? Sure, ma'am. So 5th June, World Environment Day. So this is to raise global awareness about environmental protection. Right. And everybody is involved in it. And as we can see, a beautiful earth with flowers and leaves tucked in its head. Next slide, please. So just going back to what you said, Harpreet, कि इतने वर्षों से विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है और इसके अलग अलग विषय, अलग अलग थीम होते हैं. लेकिन अगर आप नजर डालें स्क्रीन पर, केवल 2018 से 2025 तक की थीम इस पर आपको दिखेंगी. जी.
it plastic pollution, be it air pollution. Time for nature. Only one earth. फिर से solutions to plastic pollution. 2025 में हम फिर एंडिंग प्लास्टिक पोल्यूशन, यानी किसी न किसी तरीके से हम अपनी इस पृथ्वी को बचाना चाह रहे हैं, इसके पर्यावरण का संरक्षण करना चाह रहे हैं। और इसी क्रम में अलग अलग नाम देकर, लेकिन सारे नाम, सारे विषय एक ही चीज से जुड़े हुए हैं कि हमारे पास एक ही पृथ्वी है। और इस वर्ष यानी 2026 में जो हमारा विषय विश्व पर्यावरण दिवस का है वो है क्लाइमेट एक्शन। अच्छी बात है, हम जागरूकता की बात नहीं कर रहे, अब हम एक्शन की बात कर रहे हैं। इंस्पायर्ड बाय नेचर फॉर क्लाइमेट फॉर आवर फ्यूचर। और साथ ही साथ मैं ये बता दूं कि इस बार की होस्ट कंट्री अजरबैजान है, जिसकी की राजधानी बाकू है, क्योंकि हर वर्ष अलग अलग देश इसकी होस्ट कंट्री होता है। राइट मैम, क्लाइमेट चेंज जो है वो अब एक फ्यूचर थ्रेट नहीं रह गया है, इट इज़ द नीड ऑफ द आवर, वी नीड टू पे सीरियस अटेंशन टुवर्ड्स इट। तो इसके बारे में मैम प्लीज़ थोड़ा सा बात करते हैं कि क्यों एनवायरनमेंट हमारे लिए इतना इम्पॉर्टेंट है और इसकी कंजर्वेशन ना सिर्फ प्रेजेंट जनरेशन्स के लिए बल्कि फ्यूचर जनरेशन्स के लिए भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। जी बिल्कुल। तो पर्यावरण, क्योंकि प्रायः लोग पर्यावरण से केवल अर्थ समझते हैं वृक्ष लगाना बस, और उसके अलावा और कुछ सामान्य व्यक्ति नहीं समझता। तो एक नजर पर्यावरण की जो परिभाषा है इस पर डालें तो एनवायरनमेंट हैज बीन टेकन फ्रॉम अ फ्रेंच वर्ड एनवायरन व्हिच मीन्स टू एनसर्कल। सो इन द मोस्ट सिंपलेस्ट ऑफ द टर्म्स इट इज like you have a blanket all around you, above you, on the sides, below you. And what do we have in this blanket? Air, water, land, all living beings and all non-living beings. So all this environment, we are talking about conserving it. Now whatever is happening to the environment, because of that, the climate is degrading. And so the need of the hour is urgent climate action. But why? Let's see. Next slide, please. I would like to point out one thing. पर्यावरण की कोई सीमा नहीं है. On land we have boundaries between countries, between continents, but environment has no such boundaries. And moreover, environment treats everybody equally. So it is not that in one country it will be different. One country impacts another, and the other country, other communities, they impact others. So all of us are in this together. Next, please. So we were talking कि क्यों क्लाइमेट एक्शन क्यों? तो जब हमें यकीन होगा कि हाँ स्थिति बहुत गंभीर है, तभी तो हम सोचेंगे कुछ करने की, क्योंकि जब तक हमें खुद विश्वास, यकीन या कन्विक्शन नहीं होगा तो हम कुछ करेंगे नहीं। तो रियलिटी चेक कब का? मई 2026 यानी पिछले महीने का। हमारे देश ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। पूरी दुनिया की जो 50 सबसे ज्यादा गर्म शहर वो हमारे देश में पाए गए मई 2026 में, अभी हाल ही की बात है। और इन सब में तापमान 45 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा, यानी असहनीय। तो उदाहरण के लिए बांदा इन यूपी was the hottest globally. And what happens? When it is so hot that human beings cannot come out during the day, it seems like curfew. There is nobody on the streets. Outdoor work is not possible. So चाहे निर्माण कार्य हो, चाहे खेतों में काम हो, जो भी काम बाहर हो, चाहे जो लोग ठेले लगाते हो खाने के लिए, कोई बाहर काम करने को तैयार नहीं, क्योंकि जीवन है वही तो सबसे आवश्यक बात है ना। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि वो 40% मजदूरी कम ले लेंगे लेकिन रात में काम करेंगे। क्या हम सोच सकते हैं कि लोगों ने एलईडी लाइट में रात में खेती करना शुरू किया? और जाहिर बात है कि ऐसी स्थिति में जो विद्युत आपूर्ति की मांग थी, द डिमांड फॉर पावर, इट पीक्ड एबनॉर्मली। नेक्स्ट प्लीज। So as Harpreet just now said, we are facing climate extremes. Jungle fires, drought, and the increase in the number of cyclones and the intensity of cyclones
which is all extremely concerning for our very existence. Next please. तो जब हम एनवायरमेंट यानी पर्यावरण की बात करते हैं, और अभी हमने बात की कि पर्यावरण में क्या आता है, एक चादर जो हम सबके चारों ओर है, एक कंबल, और पर्यावरण का जो ये प्रभाव है, जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट एक्शन जो चेंज है, इसका प्रभाव किस किस पर? जमीन पर। जमीन उतनी उपजाऊ नहीं रह गई। पानी इतना प्रदूषित हो गया है। कभी हम नदियों के बारे में सोचते थे, अगर बच्चों से कहा गया कि नदी का चित्र बनाओ तो बड़ी ही सुंदर नीले रंग की नदी और उसमें मछलियां पहले बच्चे बनाते थे। अभी किसी एक बच्चे से कहा गया दिल्ली के आसपास किसी विद्यालय में, तो उसने जो नदी बनाई उसमें काला पानी और सफेद उफनता हुआ झाग, और उसमें कोई भी मछली या और कोई जीव जंतु नहीं थे। तो ये तो वास्तविकता होने लगी। हवा भी प्रदूषित, और हमारे चारों तरफ जो भी ध्वनि यानी आवाज है, जो साउंड पोल्यूशन या नॉइस पोल्यूशन हम कहते हैं, क्योंकि सन्नाटे की भी एक महत्ता थी, और गर्मी, रोशनी, तापमान, ये सब तो है ही। अगला, जब हम गंगा जी की कल्पना करते हैं तो, या गंगा जी शब्द कहते हैं, तो हमारे दिमाग में एक चित्र आता है, खूब बड़ी सी नदी, बहुत सारा जल और बहुत तेज गति पर जल बह रहा है। लेकिन ये चित्र गंगा जी का ही है, ऋषिकेश का। और देखिए कि ये हमारी गंगा जी गर्मी के मौसम में कितनी सूख गई है, कितना कम पानी है। बल्कि किसी को लगेगा नहीं नहीं, ये चित्र कहीं और का है। The mighty Ganges is fed by Himalayan springs. 70% of the water comes from the springs, and 50% of these springs, according to scientists, have dried. Next, please. So, melting glaciers in Arctic and Antarctica. So, what are the repercussions? In this scene, you can see that it has been predicted that the sea, which is a little far off, the sea level will rise by 2030 to the place indicated. And by 2050, for which most of the present generation will be still on this earth, it is going to rise so much. So what's going to happen? जितने हमारे तटीय इलाके में लोग रहते हैं, उन सबका जीवन प्रभावित होगा और होना शुरू हो गया है। बहुत से लोगों के पास जो खेती की जमीन थी, उनके घर थे, वो सारी जमीनें अब समुद्र में समा चुकी हैं। बहुत सी सड़कें थी और भी बहुत सी जो इंफ्रास्ट्रक्चर थे, उन पर भी इसका प्रभाव पड़ना प्रारंभ हो गया है। कुछ हमारे राज्यों ने तटीय इलाकों के रिक्लेमेशन का भी काम शुरू किया है। नेक्स्ट प्लीज। एयर पोल्यूशन की हमने बात की, तो जो आप चित्र बाएं को यानी ऑन द लेफ्ट देखते हैं, कैन यू इमेजिन द नंबर ऑफ स्टार्स व्हिच आर देयर इन द स्काई? बट हु हैज सीन देम? Very long ago in the last century, maybe some of us saw them, and we had that poem, Twinkle Twinkle Little Star. But now we really wonder where all the stars have gone. दाहिने हाथ को जो चित्र है अपनी राजधानी दिल्ली का, और हम सबको मालूम है कि एयर पोल्यूशन के कारण वहां पर कितनी समस्या साल के कई महीनों में हो जाती है। और वो केवल एयर यानी हवा नहीं है, वो हवा है जिसकी की जो हमें जीवित रखती है और जो हम सांस लेते हैं जिस हवा से। नेक्स्ट प्लीज। तो ये जो पर्यावरण पर प्रभाव पड़ रहा है, एंड बिकॉज ऑफ कटिंग डाउन ट्रीज, एंड ऑब्वियसली देयर हैज टू बी डेवलपमेंट, बट देन वी विल टॉक अबाउट इट इन फ्यूचर। द बैलेंस। तो जैसे जैसे जंगल समाप्त होते जा रहे हैं, क्योंकि मनुष्य सोचता है सब कुछ तो मेरे लिए है, लेकिन अब पृथ्वी ने और उसके अन्य जीव जंतुओं ने उत्तर देना शुरू कर दिया है, और ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट के बारे में प्रायः करीब करीब रोज समाचार आते हैं, क्योंकि ये भी तो इस पृथ्वी के प्राणी हैं, ये भी तो इनका घर है, इनके पास भी दूसरा कोई घर नहीं। तो अब उन्होंने भी जवाब देना शुरू कर दिया।
Next, please. It's a cause of great concern that psychologists are saying that because of climate change, new mental health issues have cropped up. Now, if you can see in the sketch, इसमें जो बच्ची दिखाई है वो बहुत परेशान है, रो रही है, और उसके जहन में जो चीजें घूम रही हैं, यानी बढ़ता हुआ तापमान, उसका घर, लेकिन समुद्र आगे आ रहा है, पता नहीं उसका घर बचेगा कि नहीं। जंगल में आग लगी हुई है, बहुत तेज बरसात हो रही है, और साइक्लोन आ रहे हैं, टॉर्नेडो आ रहे हैं, सब उसके जीवन को प्रभावित कर रहे हैं। और कई लोग ऐसे हैं जिनका कि वाकई में जीवन प्रभावित हो चुका है। Because of climate extremes, they have lost a lot of what they owned, including their livelihoods. So there is a new term called eco-anxiety. There are various kinds of stresses, but eco-anxiety एक नई परिभाषा है, और eco-anxiety एक climate anxiety को कहा जा रहा है, जिसके कारण मनोवैज्ञानिक रूप से लोग परेशान होने लगे हैं कि ये सोच करके कि वर्तमान में क्या स्थिति है, और वो इस बारे में भी परेशान हो रहे हैं कि भविष्य में पृथ्वी कैसी होगी। और प्रायः बहुत सारे जो टीनेजर्स हैं, कम उम्र के बच्चों को ये लगता है कि जब तक वो बड़े होंगे पता नहीं पृथ्वी रहने लायक रह भी जाएगी कि नहीं। नेक्स्ट प्लीज। हाँ, इस सब का नतीजा है कि बहुत कुछ किया जा रहा है सरकार द्वारा विभिन्न देशों में, और अपने देश में विशेष रूप में बहुत कुछ किया जा रहा है पर्यावरण संरक्षण के लिए और जलवायु परिवर्तन के बदलाव की गति को धीमे करने के। सरकार नीति बनाती है, उसके बाद बहुत सारी योजनाएं लाती है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, आप में से हो सकता है कई लोगों के पास हो, लेकिन अभी ये संख्या बहुत बहुत बढ़नी है। वर्तमान में केवल 7% इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं। हमारा लक्ष्य है हमारे देश में कि 2030 में, यानी 4 वर्ष के अंदर करीब करीब 30% प्राइवेट निजी व्हीकल इलेक्ट्रिक व्हीकल। लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल में एक बात जरूर ध्यान में रखने की है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए जो विद्युत आपूर्ति आ रही है वो उसका स्रोत क्या है। If it is clean energy, then it is helping us. But if at present it is not clean energy, then merely the site of the pollution changes. Because if it is coming from thermal energy, wherever the electricity is being produced, obviously the pollution takes place there and not here where we are driving them. But still, it is a step in the correct direction. हमारे देश में विश्व रूप के स्तर पर हमने बहुत प्रगति की है, और जो सौर ऊर्जा यानी सोलर एनर्जी है, उसमें पूरी दुनिया में हमारा उत्पादन, हम तीसरे रैंक पर हैं, और इस दिशा में लगातार बहुत सारा काम हो रहा है। प्रधानमंत्री जी की योजना है जिसके तहत सोलर पंप लगाए जा रहे हैं, और घरों पर भी, दफ्तरों कार्यालयों पर तो आपने देखा था, लेकिन अब घरों पर भी सौर ऊर्जा के लिए 1 करोड़ घरों का लक्ष्य रखा गया है। और जो पवन ऊर्जा है यानी विंड एनर्जी, जाहिर बात है ये तटीय इलाकों में होगी, वहां पर भी अभी हमारा उत्पादन, हम पूरी दुनिया में 4थे नंबर पर है। नेक्स्ट प्लीज। तो इस बार का जो विषय है क्लाइमेट एक्शन इंस्पायर्ड बाय नेचर, हमारी संस्कृति के लिए नया नहीं है। हमारी संस्कृति में तो हमने हमेशा प्रकृति की और वृक्षों की पूजा की है, लेकिन हम कुछ बदल गए। अपनी संस्कृति के साथ हम चलें तो ये स्थिति हमें देखने को मिले ही नहीं जी। हमारे यहाँ तुलसी की पूजा होती है, पीपल की पूजा होती है, वट वृक्ष की पूजा होती है। नेक्स्ट। राइट मैम, जो अभी हमारी थीम है दैट इज सर्टेनली प्लेसिंग नेचर टू सॉल्व ऑल द क्लाइमेटिक प्रॉब्लम्स दैट वी आर हैविंग।
आपने बहुत सही कहा कि हमारे तो कल्चर का ही हिस्सा रहा है पूजा पाठ और वर्शिप करना नेचर की, लेकिन क्या मैम इसमें सिर्फ रोल अडल्ट्स का ही है? क्या हमारे जो बच्चे हैं, जो यूथ है हमारी कंट्री का, वो भी इसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है? हरप्रीत, मेरे हिसाब से इसमें यूथ के अलावा बच्चे भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं जी, क्योंकि हमारी आदत कब बनती है? बचपन से ही बनती है ना। दैट्स राइट। तो अगर हम बचपन से ही ऐसी आदतें रखेंगे जिसमें हम वृक्षों का ध्यान रखेंगे, और जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि वृक्ष से हमें मुफ्त में ऑक्सीजन मिलती है। हमें से हर एक व्यक्ति 550 लीटर ऑक्सीजन मुफ्त में प्रतिदिन लेता है और कभी इस बारे में सोचता नहीं है। प्रश्न ये है कि हमने, आपने और लोगों ने कितने वृक्ष लगाए और कितने वृक्ष लगा रहे हैं। तो इसलिए जो बच्चे हैं और जो बड़े हैं और टीनेजर्स हैं, सबकी इसमें भूमिका है जी। तो जो वृक्ष लगाते हैं तो वृक्ष से हमारी जलवायु पर प्रभाव पड़ता है। जहां जहां वृक्ष होते हैं वहां पर बरसात आती है जी। वो फिल्टर करते हैं नॉइस को, साउंड को, और चिड़ियों को, पक्षियों को वहां रहने के लिए घर मिलता है। नेक्स्ट प्लीज। ये स्लाइड मेरे हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग समझते हैं कि केवल वृक्ष लगाओ। केवल वृक्ष लगाना नहीं जी, वृक्ष लगाकर उसका ध्यान रखना, क्योंकि अगर वाकई में वो वृक्ष जीवित रहेंगे तो हमें जलवायु परिवर्तन अपने आप दिखने लगेगा जी। इस चित्र में दिखाया गया है कि ये जो वृक्ष हैं, छोटे छोटे पौधे हैं घरों के बाहर, ये नगर निगम में लगाए, पर इनका ध्यान कौन रख रहा है? फैमिलीज, उस मोहल्ले में रहने वाले छोटे छोटे बच्चे, उनके माता पिता। और एक व्यक्ति लकड़ी तोड़ रहा है तो उसको रोका जा रहा है, नहीं, इसमें से लकड़ी मत तोड़ो। क्योंकि जब तक हम अपने इर्द गिर्द आसपास लगाए हुए वृक्षों का ध्यान नहीं रखेंगे तो कौन उनका ध्यान रखेगा? क्योंकि उनका फायदा और लाभ तो हमें ही मिलता है। नेक्स्ट प्लीज। जैसे आपने अभी गांधी जी के बारे में कहा था, मिनिमलिज्म या सिंपल लिविंग, तो हम रिड्यूस करें जो चीज हमें नहीं चाहिए या कम चाहिए, वैसे रिफ्यूज भी करना चाहिए। कुछ चीजें हमें चाहिए ही नहीं, और जिन चीजों का हम कम उपयोग करें, जैसे पानी है, बिजली है, खिड़की के बगल में बैठ जाएं, कहीं साइकिल से जा सकते हैं तो साइकिल से जाएं। और हमारी अपनी संस्कृति में हमेशा रहा है रीयूज। एक के कपड़े दूसरे पहने, पहले कपड़ों के थैले में होते थे हमारे घरों में, लेकिन अब ज्यादातर लोग हाथ हिलाते हुए बाजार पहुंच जाते हैं, और चाहे आप वहां से कागज का थैला ही ले रहे हैं, लेकिन फिर भी आप पर्यावरण पर तो प्रभाव डाल रहे हैं ना, बिकॉज दैट पेपर बैग हैज ऑब्वियसली बीन मेड फ्रॉम अ ट्री। हम रिसाइकलिंग करें और जैसा मैंने कहा कि रिफ्यूज करें। नेक्स्ट प्लीज। रीयूजिंग वाटर, जिस पानी से हमने कपड़े धोए हैं उस साबुन के पानी से हम शायद पोछा लगा सकते हैं। हम पानी का कम उपयोग करें, पाइप से गाड़ी को ना धोकर बाल्टी से धोएं, तो सोचिए कितना परिवर्तन है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, आदतें हैं जो बच्चे शुरू से अपनी जिंदगी में आत्मसात करेंगे, लेकिन साथ ही साथ बड़ों को भी करना होगा। हम हमेशा कहते हैं हाँ बच्चों को सिखाइए, जी बच्चे तो वही सीखेंगे ना जो बड़े कर रहे हैं, क्योंकि what they are observing, they are learning that behavior. Next please. रेन वाटर हार्वेस्टिंग अपने घर में सिंपल सा एक तरीका होता है कि जो बरसात का पानी आए उसको हम बोरिंग से वहीं पर ग्राउंड वाटर में डाल दें और वो रिचार्ज हो जाए। एंड मेनी कंट्रीज सर्वाइव ऑन दिस बिकॉज दे डोंट हैव स्नो लिटिंग पीक्स। और पानी को बचाएं, जरा सी लीकेज हो हमारे यहाँ हो, पब्लिक प्लेस हो, कहीं हो, हम प्रयास करें कि हम उसको रुकवा सकें। नेक्स्ट प्लीज। जी मैम, आपने बिल्कुल सही कहा, ये सारे इनिशिएटिव्स हमें ही लेने की ज़रूरत है। इनफैक्ट फॉर्मर अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी वंस फेमसली सेड, आस्क नॉट what your country can do for you, but ask what you can do for your country। पर कहीं ना कहीं हम लोग अपनी सरकारों पर ही सारी जिम्मेदारी डाल देते हैं कि सरकार का काम है ये करना, सरकार का काम है स्कीम को लॉन्च करना। ये कहाँ तक सही है? ये बिल्कुल सही नहीं है। हम अपनी जिम्मेदारी टाल रहे हैं। सरकार का काम है नीति बनाना, सरकार का काम है योजना बनाना, पर उन योजनाओं को आगे कौन ले जाएगा? हम लोग ही ले जाएंगे, अभी लेके जाएंगे ना। सरकार को ही वैक्यूम या साइलो में तो फंक्शन नहीं करती। और सरकार वो योजना और नीति किसके लिए बनाती है? अपने नागरिकों के लिए बनाती है। yes. तो जब तक हम अपने आचरण में we do not adopt it in our behavior,
it's not going to make much difference. True. So exactly, the government plants trees all over the place. But then why do we wait that the Nagar Nigam or their employees should come? They should come to the park. Why can't we take care of the tree which is near us? Why do we throw litter? So that government has to launch a whole program of stopping littering, stopping spitting. These are our basic habits. Yeah. So like जो हमारे विषय है climate action for our future. कौन करेगा जो आपने अभी कहा who? Individuals of all ages. छोटे बच्चे, बड़े लोग, वरिष्ठ नागरिक, communities. There is so much power in the communities. हम अपने मोहल्ले के ही 10 घरों का ही एक ग्रुप बना लें, केवल 10 घर, 5 घर ही मिलकर के कुछ करें और फिर देखिए कि कैसे सुनामी जैसा परिवर्तन आप प्रारंभ कर सकते हैं. लेकिन हम सोचते रहेंगे नहीं नहीं हम नहीं करेंगे, वो करेगा. And whenever we think that if I do not do anything or if I do anything it doesn't make any difference, we are absolutely wrong. तो सारी communities करें, governments करें, organizations, private, corporate, सब लोग काफी कुछ CSR और इस सब में कर रहे हैं और सब देश करें. तो सारे लोग मिलकर के अपनी इस पृथ्वी का भविष्य हम लोग एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित कर सकते हैं. नेक्स्ट प्लीज. हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छी एक बात कही. We the present generation have the responsibility to act as a trustee of the rich natural wealth for the future generations. और दूसरी बात, the issue is not merely about climate change, it is about climate justice. हम आप सब और आगे आने वाली पीढ़ी भी, हम केवल ग्लोबल ट्रस्टी हैं, जिससे कि इन संसाधनों का पृथ्वी पर हम ऐसे उपयोग करें and we use it only to the limit that we meet our needs, not our greed. That's right. So that the future generations will also ultimately get their rights. True. And if they get their rights, obviously it is climate justice for everybody. Absolutely. Next please. तो जो बात मैंने पहले कही कि each one of us impact our earth by action and by inaction too. If we don't act, we are still making a contribution and making the situation worse. So what is better is that each one of us acts, and obviously if I can make a difference, why not act? You may think, जैसे कहते हैं ना हमारे यहाँ कि अंधकार में एक भी दिया जलाने से रोशनी होती है ना? होती तो है. हम दिवाली पे असंख्य करोड़ों दिए जलाते हैं. तो हम अच्छे आचरण क्लाइमेट जस्टिस के लिए, क्लाइमेट एक्शन के लिए अगर अच्छा आचरण रोज करेंगे तो अपने आप बदलाव आएगा. हाँ, लेकिन केवल विश्व पर्यावरण दिवस के लिए नहीं, रोज अपने जीवन में. नेक्स्ट प्लीज. ये मेरा एक स्लोगन है जो मैंने एक बाल पर्यावरण वाहिनी बनाई थी जिसमें 1 लाख बच्चे थे, चिल्ड्रंस एनवायरमेंटल आर्मी, एंड आई गेव दिस स्लोगन to those children, but it applies to every single one of us. One earth, one life, only one earth, no other planet, and one life. यही तो एक जीवन है जो आप, मैं, हम सब जानते हैं. Let me make the difference. तो अगर हम में से हर एक व्यक्ति कुछ ना कुछ करेगा तो हम जरूर कुछ बदलाव ला सकते हैं, चाहे स्थिति जितनी भी भयावह हो. That's right. Because if we act, जैसे कहते हैं ना फिजिक्स में, to every action there is an equal and opposite reaction. जी. तो अगर हम कुछ एक्शन करेंगे तो उसका फल हमें अवश्य मिलेगा. Absolutely. मैं एक बात जरूर आपके माध्यम से कहना चाहूंगी हरप्रीत. जी जी. कि हम बहुत से त्योहारों पर एक दूसरे को विश करते हैं. आप स्लाइड हटा सकते हैं. जी. हम बहुत से त्योहारों पर ना खूब सारी मैसेजेस भेजते हैं, अगल बगल लोगों को जाकर के कहते हैं. हम विश्व पर्यावरण दिवस पर क्यों नहीं एक दूसरे को अपने कार्यालय में, अपने मोहल्ले में, अपने दोस्तों में, Right. और व्हाट्सएप पर ढेरों मैसेज भेजते हैं. कई त्योहारों पे तो भर जाता है. हम विश्व पर्यावरण दिवस की भी ग्रीटिंग क्यों नहीं भेज सकते? बिल्कुल लोगों बिल्कुल. को पता तो चले, है ना? एब्सोल्युटली मैम, बहुत बहुत ही ब्यूटीफुल आपने बात कही. इनफैक्ट
ये सब चीज़ें देखकर समझकर ये तो क्लियर है दैट क्लाइमेट चेंज इज़ नो लॉन्गर अ फ्यूचर थ्रेट, इट इज़ ऑलरेडी रीशेपिंग लाइव्स अक्रॉस द प्लानट। और अर्थ हमें सिग्नल्स दे रही है, जैसे हमें कोई तकलीफ होती है तो बॉडी में सिम्टम्स नज़र आ जाते हैं। सो अर्थ ने भी हमें अपने सिम्टम्स दिखाने शुरू कर दिए हैं, सिग्नल्स देने शुरू कर दिए ना। द क्वेश्चन इज़ व्हाट काइंड ऑफ सिग्नल्स आर वी गोइंग टू सेंड इन रिटर्न। और जैसा कि आपने कहा दैट वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की शुभकामनाएं तो ज़रूर बनती हैं, बिकॉज इट हैज़ बिकम वन ऑफ दोज प्लेटफॉर्म्स विच हैज़ फार रीचिंग इम्पैक्ट अक्रॉस द ग्लोब। सो मैम, थैंक यू सो मच कि आपने हमारे साथ जुड़ के हमें इसके बारे में और अवगत कराया और इंस्पायर किया विद योर आइडियाज़ एंड प्रेजेंटेशन कि हम सही मायनों में वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे को मनाएं। और ये याद रखें, वी हैव ओनली वन अर्थ, और हम सब पर उसका अधिकार है, उनका भी, जो अब तक इस दुनिया में नहीं आए हैं। थैंक यू सो मच मैम फॉर योर टाइम एंड कॉन्ट्रीब्यूशन टू दिस स्पेशल सेशन ऑफ आवर्स। थैंक यू। Thank you very much, Harpreet. Thank you so much. I would like to also thank our sign language expert here and to your entire team of NCRT and CIET. Thank you very much for giving me this opportunity. And I again wish you पर्यावरण दिवस पर असीम शुभकामनाएं। धन्यवाद। Thank you so much. So viewers, that was a special session on the topic climate action for the present generation. We had with us our esteemed guest, Dr. Anita Bhatnagar Jain ji, former IAS, environmentalist and children's author. And as ma'am has already thanked the entire team for making this presentation a success, I wish to reiterate the same. And now we are wrapping up the session over here. Let me tell you quickly what's coming up next. And here is the program schedule. So in a short while from now, you'll be watching another session of ours that is going to be our session for inclusive classrooms. Subject is English and topic is going to be good food. With this, it's a wrap. This is me, Harpreet Kaur, signing off. Namaskar and happy World Environment Day.